Morning to one and all present here. The sun is up and there's a distinct buzz in the air. If yesterday was about excitement of arrival, today feels different. Today feels like a momentum. Absolutely, Lisha. They say the second day of a festival is always special. We aren't just breaking the ice anymore. The conversation has already begun. We are now mid-sentence in a beautiful dialogue that started yesterday. Oh, and what a dialogue it has been. But looking at today's schedule, I think we are about to receive sheer gifts, okay? If day one was a spark, day two promises to be a steady fire. Well said. Today, Rangdarshini Hall isn't just a venue. It's going to be a time machine. We are going to travel from ancient Himalayas to the future of governance, from the rigor of civil services to the rebellion of modern art. It really is a kaleidoscope of ideas. And looking at this audience, some familiar faces from yesterday and many new ones joining us today, it's clear that Bhopal's appetite for culture is insatiable. That is the hallmark of this city. At the Bhopal Literature and Art Festival presented by the Society for Culture and Environment and powered by Dainik Bhaskar, we don't just host sessions, we curate experiences. The stage is set, the speakers are ready. Ladies and gentlemen, you're very much welcome to the day 2 of the BLF 2026. As dusk settles the day gently moves towards reflection. We invite you into a story that predates time, language, and even memory. Our first session for today is Adi Dev, the first love story of the universe. Vishwa ki Pratham Prem Katha. This is not merely a book discussion, it's a journey into mythology, devotion, and the earliest expression of love, as understood by human consciousness. Long before modern narratives, before epic stories like these gave meaning to creation itself, they asked not how the universe began, but why. And love lay at the core of that answer. So I would request you all to give our speakers a wonderful, huge round of applause. For their introduction, Mr. Prashant Dikshit hails from Sagar, MP, and brings together the worlds of discipline, education, and imagination. A mechanical engineering graduate, he has been serving as a training officer under Skill Development Department of MP since 2013. He is currently posted at the Government Divisional ITI Bhopal. For his outstanding contribution to vocational education, he was honored the National Teachers Award in 2024. Alongside his commitment to education, Prashant ji has a deep passion for Hindi literature and mythology. This passion found expression in his published works that we are going to be a part of the discussion today. And Vishwa ki Pratham Prem Katha Adi Dev, released in 2023, followed by part 2 of the series in 2025, a rare blend of devotion, philosophy, and narrative imagination. In conversation with him, we have Mr. Rajesh Gaba, popularly known as Prince Gaba, a multifaceted media professional whose presence spans journalism, anchoring, motivation, art, and film criticism and performance. A respected youth icon, he is currently pursuing his PhD. In 2025, Prince Gaba ji was honored with the Best Influencer Award and the Best Motivational Speaker of the Year Award by the Sage University, Bhopal. Internationally, he has represented Indian media at a prestigious cultural exchange program at London's Royal Albert Hall, alongside delegates from 105 countries. With a career that began at the All India Radio's Yuva Vani, he has anchored major national and international festivals, conducted over 2,000 exclusive interviews with global leaders, artists, and icons. So together, they are going to rediscover mythology, and it's going to be an amazing, amazing session, guys. I'm really eager to hear this session. Audience, let's start this session with a huge round of applause for our speakers.
भारत भवन रंग दर्शनी दीर्घा, और मेरे लिए इसलिए टेम्पल है बिकॉज आई बिलोंग्स टू चंडीगढ़। और मैं जब लंदन में था तो भारत भवन के बारे में सुनता था कि एक ऐसा सेंटर है जहां चाहे नसीर साहब हों, ओमपुरी हों, सितारा देवी हों, पंडित जसराज हों, भीमसेन जोशी जी हों, जो प्राउड करते थे। या नीरज जी से जब मैंने इंटरव्यू किया था लंदन में, ही टेल मी प्रिंस, मैंने दुनिया भर में अपनी कविताओं के प्रोग्राम किए हैं, निशा निमंत्रण को पढ़कर, हरिवंश राय बच्चन जी को पढ़कर मैं कवि बना, लेकिन मेरे लिए अगर सबसे बड़ा कोई रिवॉर्ड अवार्ड है तो भारत भवन में परफॉर्म करना। तो मुझे लगता है एक बार जोरदार तालियां इस भारत भवन के लिए, इसको बनाने वालों के लिए, जो हमारे लिए प्राउड की बात है कि देश का कल्चर परफॉर्मिंग सेंटर भारत भवन में है। और मैं अभी भी बहुत घबरा रहा हूं, कांप रहा हूं, बिकॉज क्योंकि यहां मैंने उन लोगों को सुना है और देखा है, मेरे लिए ऑनर की बात है। तो चलिए मैं टाइम न लेते हुए पहले आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल करता हूं बिहाफ ऑफ भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल, दैनिक भास्कर फैमिली। और मेरी तरफ से मैं जैसा कि बताया प्रिंस गाबा हूं, और मेरे साथ मुझे मौका मिला है एक बहुत ही खूबसूरत किताब को पढ़ने का, क्योंकि मैं किताब का लालची हूं, तो जब भी किताब कहीं मिलती है तो जरूर मैं पढ़ता हूं। तो एक किताब के बारे में मैं थोड़ा सा आपको परिचय दूंगा, फिर हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी का वेलकम करता हूं, और मेरे लिए ऑनर की बात है कि मध्य प्रदेश के डिप्टी डीजी रहे ब्रिगेडियर विनायक सर एंड उनकी वाइफ जयलक्ष्मी विनायक खुद नेशनल लेवल की ऑथर हैं। और चूंकि मैं इनसे इसलिए रिलेट कर पा रहा हूं, मैं उस दिन प्रशांत जी से बात कर रहा था कि मैंने अपनी जिंदगी का सेकंड आर्टिकल जो इंडिया टुडे में लिखा था वो कलाम साहब का था, और आपकी कविता को पढ़कर कलाम साहब इतने इंस्पायर हुए थे कि उन्होंने, कलाम साहब ने स्पेशल लेटर मैडम के लिए दिया था। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां, ऐसे ऑथर बैठे हुए हैं आगे फ्रंट लाइन में भी, जो रेस्पेक्टेड गेस्ट और हमारे सारे जो रेस्पेक्टेड ऑडियंस है। सो मैं शुरू करता हूं। नमस्कार। कहते हैं कुछ कहानियां पढ़ी नहीं जाती, कुछ कहानियां पढ़ी नहीं जाती, सिर्फ अनुभव की जाती हैं। कुछ प्रेम कथाएं सिर्फ प्रेम की नहीं होती, वे तप, त्याग, संघर्ष और बराबरी की होती हैं। भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल के इस विशेष सत्र में हम जिस प्रेम कथा की बात करने आ रहे हैं, जी हाँ, ये प्रेम कथा है, जैसा कि अभी एंकर ने कहा कि विश्व की प्रथम प्रेम कथा है, जो हम अभी प्रशांत जी से बातचीत करेंगे। जिस प्रेम कथा की बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, वह आज के समय में भी सवाल पूछती है। मैं प्रिंस गाबा आप सभी सुधी साहित्य प्रेमी दर्शकों का, श्रोताओं का भोपाल लिटरेचर परिवार की ओर से पुनः स्वागत और इस्तकबाल करता हूं। सो हमारे बीच जो शख्सियत बैठी हुई है, मुझे जिनसे बात करने का सौभाग्य मिला है, आप राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित लेखक हैं प्रशांत दीक्षित जी। आप ऐसे लेखक हैं जिन्होंने अपने लेखन की शुरुआत तो गजल कविताओं से की थी, लेकिन कहते हैं कि शायद प्रेम एक ऐसा विषय है जो कहीं ना कहीं हमारे अंतर्मन को छूता है। तो आपने इतिहास लोक कथा को दर्शन से जोड़कर एक महागाथा रची है जिसका नाम आदिदेव है। और हमारे समाज में अक्सर आपने देखा होगा कि स्त्री को या तो चरणों की दासी बनाया जाता है, जितना मैं समझ पाया हूं, क्योंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी नहीं हूं, मीडिया का विद्यार्थी हूं, तो मैंने जितना इतिहास को पढ़ा है, जाना है, या तो हमारे इतिहास में महिलाओं को पैरों की दासी बनाया गया, या देवी, कभी देवी का दर्जा दिया गया, या किसी और रूप में उन्हें निरूपित किया गया। लेकिन जितनी मेरी समझ है, जितना मैंने अपने परिवार में अपनी दादी को शिव पुराण, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हुए देखा, जितनी मेरी स्मृति में है उनके जो शब्द, मुझे याद है कि शायद शिव जी इकलौते पति हैं, पुरुष हैं, देव हैं, जिन्होंने उन्हें बराबरी का दर्जा दिया, जिन्होंने अर्धनारीश्वर कहा। तो मुझे लगता है कि आज शिव जी से बड़ा मेरी नजर में दुनिया में कोई वो नहीं है जो उस कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर भी एक बात करता है कि अर्धनारीश्वर, कोई भेद नहीं है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। तो इसी भाव शायद जो मैंने ये, जब मुझे ये आदरणीय राघव चंद्रा सर और आदरणीय अभिलाष खांडेकर सर ने किताब दी और मेरा परिचय इस किताब के माध्यम से प्रशांत जी के साथ हुआ, तो मैंने जब इस उपन्यास को पढ़ा तो मुझे एक ही जो समझ में आई कि इस उपन्यास की आत्मा यही है कि शिव जी ने जिस तरीके से निरूपित किया है। सो बेसिकली जो प्रशांत जी हैं, इन्होंने शिव जी को रुद्र के रूप में, आप सभी ने शिव पुराण पढ़ी होगी, शिव पुराण के बारे में हम सब जानते हैं, शिव जी की जो कहानी है उसी को इन्होंने एक नए तरीके से निरूपित किया है। सो इन्होंने शिव को रुद्र के रूप में, पार्वती को शक्ति यानी रानी हिमान की पुत्री शिवी के रूप में प्रस्तुत किया है, जो ये किताब है आदिदेव। और ये प्रेम और मिलन की कथा नहीं है, मुझे लगता है ये समानता की कथा है, स्वीकार्यता की कथा है, जो आज बहुत चैलेंजिंग है। आज जो डोमिनेंस की बात हो रही है, आज वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, आज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, तो मुझे लगता है ये किताब बहुत रिलेवेंट है।
और अगर मैं कहूं कि आदिदेव प्रेम कथा को केंद्र में रखा जाए तो सबसे बड़ा संदेश जो इस किताब में है जब आप पढ़ेंगे वो है प्रेम, तप और समानता। और सबसे खास बात है कि ये जो किताब है जो आज हमारे सामने चर्चा के लिए लाई गई और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ प्रशांत जी से, तो मैंने इस किताब में जो पढ़ा है वो मैं आपको जीस्ट इसलिए थोड़ा सा इंट्रो बता रहा हूँ ताकि आप जुड़ पाएंगे, फिर हम बातचीत करेंगे। मैंने इसमें देखा है प्रेम को तब बनते हुए, इस किताब में प्रेम को तब बनते हुए देखा है, शक्ति को बराबरी से देखा है। शक्ति मतलब शिव की जो अर्धांगिनी है, और शिव को सिर्फ देव नहीं बल्कि एक सहयात्री देखा है। हम लोग देव के रूप में निरूपित करते हैं। प्रशांत जी आपका धन्यवाद। मैं मतलब मेरे लिए शब्द नहीं है क्योंकि इस किताब को मैं जितना अभिभूत हूं और बार बार मैंने कम से कम 10-12 बार इस किताब को पढ़ा है। कल रात को मैं अपने ऑफिस से कवरेज करके 1:30 बजे रात को घर पहुंचा हूं, 4 बजे फिर मैंने किताब पढ़ी है क्योंकि मुझे लगा कि मैं क्या बात करूंगा, इतना अच्छा आपने लिखा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कथा के माध्यम से मुझे लगता है जब अभी हम प्रशांत जी से बात करेंगे तो ये सोचने पर मजबूर करेगी। पुनः मैं आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद और इस्तकबाल करता हूं। और अब मैं विलंब न करते हुए प्रशांत जी का एक छोटा सा परिचय के साथ मैं शुरुआत करते हैं हम बातचीत की। प्रशांत जी, जैसा कि अनाउंसर महोदय ने बताया कि आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली और आप मूलतः सागर मध्य प्रदेश बुंदेलखंड से बिलोंग करते हैं। आपका वर्तमान पता भोपाल में है और जैसे कि आपको बताया कि आप आईटीआई में हैं, सीनियर पोस्ट पर हैं, प्रोफेसर हैं वहां पर, संभागीय शासकीय अधिकारी हैं। आपके पिताजी चूंकि मूलतः देखिए किसान परिवार से हैं, आपके पिताजी कैलाश दीक्षित जी और श्रीमती अनीता दीक्षित जी गृहिणी है और आपकी पत्नी मुझे लगता है कि ये सरकारी जॉब में है और मैम भी क्योंकि राइटर हैं और जानती है कि सर जिस तरीके से काम करते थे ब्रिगेडियर सर, तो एक जॉब में रहते हुए शायद सृजन करना बहुत टफ होता है। आप सोच सकते हैं, मुझे लगता है इनके लिए साधुवाद है, इनके माता पिता का आशीर्वाद और इनकी पत्नी। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां एक परिवार के लिए, क्योंकि लेखन सृजन करता है लेकिन मुझे लगता है पूरा परिवार उसमें सहभागी होता है। आपका बेटा भी मोक्ष यहाँ पर मौजूद है, आपको राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और आपकी ये जो मेरे हाथ में किताब आप देख रहे हैं ये मंजूर पब्लिकेशन से आई है। मंजूर पब्लिकेशन एक बहुत बड़ा काम कर रहा है कि नए लेखकों को जो एक मौका दे रहा है और ये इसे सेकंड, वैसे तो एक और इसका भाग आ चुका है लेकिन ये सेकंड भाग, दोनों अपने आप में अलग है। तो चलिए प्रशांत जी, अब मैं समय न लेता हुए आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रशांत जी, सबसे पहले तो ये सवाल मुझे जब मैंने अपने कुछ दोस्तों जो राइटर दोस्त हैं, क्योंकि मैं तो राइटर नहीं हूं, मैं तो पढ़ने वाला हूं, मुझे इतना समझ भी नहीं, तो उन्होंने एक सवाल दिया। सबसे पहला मेरा आपसे बातचीत का सिलसिला किताब से कि इस पुस्तक का मूल भाव क्या है। क्योंकि मैंने कहा है, मेरा कहने का तरीका अलग है, आप एक लेखक हैं, जिस तरीके से आपने सोचा विचारा, तो मेरा सवाल है कि इस पुस्तक का मूल भाव क्या है, इसकी प्रेरणा आपको कहां से मिली लिखने के लिए, इंस्पिरेशन। और इसका उपशीर्षक एक बड़ा दावा करता है कि विश्व की प्रथम प्रेम कथा, मतलब ये इसमें जो लिखा है, तो इसे आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत नमस्कार, हर हर महादेव। अगर पुस्तक के मूल रूप की बात की जाए तो निश्चित ही इसका जो प्लॉट है या आधारित है वो शिव पर आधारित है, भगवान शिव पर आधारित है। हम जब भी शिव की पार्वती की बात करते हैं तो हम सब ऐसा सोचते हैं, हम ऐसा महसूस करते हैं कि सबसे अच्छे पति कौन है तो शिव हैं, सबसे अच्छे प्रेमी कौन है, शिव हैं। लेकिन जब एक कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कथा की बात आती है, जैसे अगर हम रामायण की बात करें, रामचरितमानस की बात करें, तो एक स्टोरी लाइन वहां दिखती है, एक कथा दिखती है। लेकिन जब हम शिव पार्वती की बात करते हैं तो शायद स्टार्टिंग से होके तपस्या और विवाह पे वो समाप्त हो जाती है और प्रेम एक कथा के रूप में नहीं दिखता। तो शुरू से एक ऐसा मन में था कि एक स्टोरी लाइन वहां पे दी जाए कि शुरुआत से लेके अंत तक यानी विवाह तक कैसे उन्होंने प्रेम किया होगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि प्रेम करने के लिए मनुष्य होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुष्य ही जो शरीर, हमारी आत्मा है, मन है, जो प्रेम को अंगीकार कर सकता है। तो मैंने ये प्रयास किया महादेव के आशीर्वाद से कि हम शिव को एक मानवीय रूपांतर में कर पाया। मैंने चाहा कि शिव ऐसे पात्र के रूप में इस पुस्तक में रहें जो हमारे बीच के हों, हमारे साथ हों, हमारे साथ बढ़ते हों, हमारे साथ उठते बैठते हों। तो वही मूल भाव रहा इस पुस्तक का। बहुत अच्छी आपने बात की। मुझे एक और जानना है, क्योंकि यहाँ सभी आदरणीय बैठे हुए हैं, नई जनरेशन बैठी है, मेरे साथ के लोग बैठे हुए हैं। शिव के बारे में सभी जानते हैं, महाकाल आदिदेव को, लेकिन आपने जो इस कहानी में जो मुख्य पात्र है जो मैंने पढ़ा है, शिव जी को रुद्र, जो रुद्र है आपका मेन कैरेक्टर, उसको आपने शिव जी से जोड़ा है।
मतलब मुझे जो समझ में आ रहा है शिव जी से जोड़ा है और उन्हें सर्वश्रेष्ठ पति, जैसा कि मैंने अभी शुरू में कहा, सर्वश्रेष्ठ पति के रूप में आपने निरूपित किया है। तो क्या ये आज के पुरुष समाज के लिए एक आईना है? क्या पति होना सिर्फ अधिकार नहीं, बराबरी और समानता की भी जिम्मेदारी है? क्या कहेंगे आप इसके बारे में? जब हम सबसे अच्छे पति या सबसे अच्छे प्रेमी की बात करते हैं तो केवल कहने से शायद काम ना चले, लेकिन शिवजी का पूरा चरित्र ही ऐसा है, उनके कर्म ऐसे हैं कि आप उनको एक अच्छे पति, एक अच्छे प्रेमी की भूमिका में देख पाएंगे। आप देखेंगे शिव एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी पत्नी को अपने समकक्ष स्थान देते हैं, वो उनके साथ बात करते हैं, वो साथ में विचरण करते हैं। शिव पार्वती को कहानियां सुनाते हैं, दोनों आपस में नृत्य करते हैं साथ में, आवश्यकता हो तो शिव पार्वती के लिए तांडव भी करते हैं। और मुझे लगता है कि ये इससे अच्छा उदाहरण नहीं मिल सकता कि एक आदर्श पति को कैसा होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि शिव कथाएं हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि उनकी शादी हुई तो देव के अलावा भूत और वो सब लोग पहुंचे थे। मतलब बचपन से जो हम सुनते तो जो शिव पार्वती की कथा हमने बचपन में सुनी है, मुझे लगता है इस किताब में जब हमारे जो तमाम जो हैं कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी जब इसे पढ़ेंगे तो एक नए रूप में जिस तरीके से आपने प्रस्तुत किया है, इसमें खासकर जो मैंने जो देखा है बीच के पार्ट में, आपने लोक कथाओं को बहुत जोड़ा है, जो परंपराएं हैं, लोक कथाएं हैं। तो क्या आपको कभी डर लगा एज ए मतलब लेखक लिखते हुए, किसी की जो पाठक है क्या इस नए रूप में स्वीकार कर पाएगा? क्या लेखक के लिए सबसे बड़ा रिस्क था? क्या आपको विश्वास था कि ये, क्योंकि क्या होता है जब भी हम कोई चीज रिसर्च करते हैं, लिखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक परंपरा चली आ रही है, ऐसा ही होता है, इससे हटकर कुछ नहीं है, ऐसा हमने सुना नहीं है। तो इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आपके मन में क्या चल रहा था जब आप लिख रहे थे, क्योंकि आपने इसमें शिव और पार्वती को जो, जैसा आपने बताया रुद्र है और जो हिमान की पुत्री है शिवी है, आपने साइंटिफिक तरीके से प्रस्तुत किया है। तो क्या कहेंगे? निश्चित ही हमारे देश में शिव जो है एक आस्था का विषय है। अगर हम पूरे भारतवर्ष को जोड़ने का प्रयास करें तो मुझे लगता है कि एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो कैलाश से लेकर कन्याकुमारी तक एक रूप में विराजमान है, ऐसा और किसी देव के साथ नहीं है जी। दूसरा, आप भारत के किसी भी क्षेत्र में जाएं, शिव से जुड़ी हुई आपको विभिन्न कथाएं मिलेंगी, लेकिन में से कोई भी कथा, कोई भी लोक कथा एक दूसरे का विरोध नहीं करती, वो एक दूसरे के पूरक हैं। एक कथा हमेशा दूसरे को बढ़ाने का ही प्रयास करती है। तो मुझे लगता है कि जो मैंने लिखा शायद वो भी लोग उसी तरीके से स्वीकार कर पाएंगे और जो मूल भाव है कहानी कहने का उसे स्वीकार करेंगे। और मुझे ये प्रसन्नता भी है कि अभी तक जितने लोगों ने इस पुस्तक को पढ़ा उन्होंने उस मूल भाव को स्वीकार भी किया है। एक अक्सर हम सुनते आए हैं जो बड़े बड़े शायरों से, साहित्यकारों से, कि वजन तब आता है आपकी बात में, शायरी में, जब आप प्रेम करो, प्रेम में जलो या अलगाव हो। जैसे कुमार विश्वास जी हैं तो प्रेम में टूटे तो उन्होंने लिखा कोई दीवाना कहता है कोई पागल। गोपाल दास नीरज जी ने जब प्रेम में उनको और तमाम मिला तो उन्होंने लिखा कि कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। सो जो आपकी कहानी है जो मैंने पढ़ी है, इसे मैं प्रेम कथा, जैसा आपने कहा भी विश्व की प्रथम प्रेम कथा, तो आपकी कहानी में प्रेम में संघर्ष बहुत है। और रुद्र जो चूंकि एक वनवासी आपने दिखाया, रुद्र को, शक्ति को जो शिवी है वो एक राजकुमारी है, एक वनवासी है, एक राजकुमारी आपकी कहानी में, और प्रजापति जो शिवी के पिता हैं उनका प्रतिरोध भी इसमें नजर आता है। एक पिता का जो प्रतिरोध होता है, क्योंकि हर पिता चाहता है कि मेरी बेटी अच्छे घर में ब्याहे। एक राजा की बेटी एक वनवासी के साथ जाएगी तो उसका जीवन कैसा हो। क्या आपको लगता है कि संघर्ष जो है, संघर्ष के बिना प्रेम अधूरा है या सतही रह जाता है, या संघर्ष ही प्रेम को गहराई देता है? देखिए सर, घर्षण से ही जो है अग्नि उत्पन्न होती है, तेज उत्पन्न होता है। अगर हमें तेज उत्पन्न करना है तो निश्चित ही घर्षण होगा। और विशेष रूप से अगर प्रेम की बात की जाए, जो मैंने अपनी पुस्तक में कहा भी है, सती, शक्ति और रुद्र के संवाद के रूप में, कि आकर्षण या मोह को प्रेम नहीं कह सकते। एक आकर्षण अलग है, मोह अलग है, प्रेम अलग है। और घर्षण या संघर्ष ही वो है जो आकर्षण को और मोह को प्रेम से अलग करेगा। अगर वो सिर्फ आकर्षण है, सिर्फ मोह है, तो जैसे उसको द्वंद्व मिलेगा, संघर्ष मिलेगा, वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो वास्तविक प्रेम है वही आगे बढ़ेगा। बहुत सुंदर बात आपने कही कि मतलब बगैर संघर्ष के शायद सफलता नहीं मिलती, जो कहा जाता है। और प्रेम में वो आग का दरिया है ना,
डूब कर जाना है, तैर कर जाना है, ये आपको तय करना है। बिल्कुल आप सभी जानते हो, हम सभी ने जीवन में प्रेम कभी ना कभी महसूस किया होगा। सो एक मेरा इसी से जुड़ा हुआ, जो आपने बड़ी अच्छी बात कही, उसी से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जब आप ये कथा लिख रहे थे, जब आपने सोचा होगा, पढ़ा होगा, जैसा आपने बताया किस तरह आप इंस्पायर हुए, सो क्या कभी कोई ऐसा वक्त आया कि जब रुद्र का चरित्र आप पर हावी हो गया हो? मतलब कैरेक्टर जो होता है आपसे पहले कहानी कहने लगा, पात्र बोलने लगा और आपने बस उसको कागज में उतार दिया, ऐसा कभी वक्त आया? क्योंकि जनरली मैं जितने इंटरव्यूज करता हूँ साहित्यकारों के, जितने बड़े बड़े लेखक हुए हैं, मैं बात करता हूँ गुलजार साहब से, तो कई बार वो भी बोलते हैं कि बेटा मैं कई बार ना शब्द अपने आप उतरने लगते हैं, सो कहीं और से इंस्पिरेशन, या जैसे शिव कुमार शर्मा जी जो हमारे देश के इतने बड़े संगीतकार रहे, जब मैंने उनसे पूछा कि सर आप जब परफॉर्म करते हैं तो एक अलग ऑरा में होते हैं, मतलब जब आप बैठते हैं, तो वो कहते हैं कि और उसके बाद उन्होंने कभी भी वो अपने ऑडियंस से नहीं मिलते हैं, इसके बाद तुरंत तो ग्रीन रूम में चले आते हैं, 20 मिनट के बाद मिलते हैं। बोलते हैं कि जब मैं मंच पर आता हूं तो मैं नहीं, हम होता हूं और ईश्वर होता है। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ, इसको कहानी को आत्मसात करते हुए, लिखते हुए? मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी यात्रा ही ऐसी है। यानी आज ये पुस्तक लिखने के बाद जब मैं सोचता हूं कि ये किसने लिखा, या शायद मैं प्रयास करूं तो मैं लिख पाऊंगा, तो उत्तर हमेशा ना ही होता है, क्योंकि बार बार प्रयास करने पर भी हम लिख नहीं पाते। लेकिन शायद महादेव का आशीर्वाद है, उनकी इच्छा है कि शब्द उतरते जाते हैं। और जो विशेष रूप से इस कहानी के पात्र हैं, रुद्र हैं, शिवी हैं, शक्ति हैं, नंद हैं, ये तो अंदर ऐसे घुले हुए हैं कि हम उनको देखते हैं। यानी जब आप लिखने जाते हैं, पात्र आपके अंदर समा चुके होते हैं, अब हम केवल देख रहे होते हैं पात्रों को, पात्र अपना काम कर रहे होते हैं और हम उसको जो है बस कागज पे उतार रहे होते हैं, और सारी स्टोरी ऑटोमेटिक चल रही होती है। सर जब आप लिख रहे थे इसको प्रशांत जी, तो क्या पूरी कहानी आपके मन में स्पष्ट थी या लिखते लिखते कहानी बनती गई? सर पूरी कहानी स्पष्ट थी ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स जरूर थे, कुछ घटनाएं थी कि इस घटना से यहां तक पहुंचना है, और उनके बीच में कल्पनाशीलता के लिए अवसर था। तो धीरे धीरे करके जैसे एक पड़ाव पे पहुंचते थे तो अगले पड़ाव की तैयारी चालू होती थी, और कहीं ना कहीं वो पड़ाव आपस में फिर जुड़ते जाते थे। बिल्कुल। एक सवाल, काफी सारे युवा साथी बैठे हुए हैं, सो युवा पाठकों के लिए आप इस कथा के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं? अगर कोई युवा आदिदेव पढ़कर किताब बंद करे तो उसके मन में क्या बात गूंजनी चाहिए? सर मैं तो ये चाहूंगा कि जब ये कोई भी किताब पढ़े आखिरी पेज, तो उसके सारे प्रश्न समाप्त हो जाएं, उसके मन में एक असीम शांति हो कि उन्हें जो पढ़ा है उससे संतुष्ट हुए हैं। बाकी संदेश या सुझाव, मैं भी चूंकि अभी भी मेरी पहली पुस्तक है और अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, आशीर्वाद मानता हूं कि प्रथम पुस्तक के बाद ही इस मंच पर बैठने का, इस मंच को साझा करने का अवसर मुझे मिला है। तो शायद किसी को सलाह देने के योग्य तो मैं नहीं हूं, फिर भी ये कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। हमारी जो ये कथाएं हैं सिर्फ पौराणिक कथाएं नहीं हैं, वास्तविकता में हमारा इतिहास है, तो इस इतिहास को पढ़ें, इतिहास के विषय में जानें, बस यही मैं कह सकता हूं। प्रशांत जी, चूंकि जैसे आपने कहा कि आप कविताओं और गजल में आपका दखल पहले से था, लिख रहे थे, किताब पहली है, बहुत सारे लेखक हैं, बहुत से मन में शंका है, लिखते तो बहुत सारे ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन किताब की शक्ल में पांडुलिपि में कैसे उतारें, कैसे शुरू करें? तो एक लेखक के रूप में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या लगी आपको लेखन के रूप दौरान? सर अगर विशेष रूप से इस पुस्तक के लेखन के दौरान कहें तो जो इसका प्लॉट है वो थोड़ा ऐसा है कि जिसमें शिव है, शक्ति है, तो एक तो बहुत बड़ा टास्क ये रहा कहीं एक पौराणिक कथा बन के ना रह जाए। दूसरा इसकी भाषा पे बहुत ध्यान देना था, क्योंकि भाषा को कुछ ऐसा रखना था जो आम युवा उसको समझ पाए आज के समय से, लेकिन एक भाषा की गरिमा बना के रखना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, तो ये चैलेंज रहा। और जहां तक बात की कि पांडुलिपि को पुस्तक की शक्ल में चेंज करना, तो निश्चित ही चूंकि पहली बुक थी, स्ट्रगल तो था, पब्लिशर्स को भेजना था, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मंजुल प्रकाशन का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया, और आज जो मैंने लिखा, जो मुझसे लिखवाया गया, वो इस पुस्तक के रूप में हम सबके सामने है। जी, मंजुल पब्लिकेशन को हम सभी धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश से, भोपाल से हैं और कई भाषाओं में काम कर रहे हैं, और खासकर नए लेखकों को, क्योंकि चैलेंज होता है कि जो नया लेखक है, जिसके पास कोई अप्रोच, कोई कहीं लिंक या कोई इस तरह का पहले का बैकग्राउंड नहीं है, तो उसके लिए चैलेंजिंग होता है। आपको पुनः बहुत बहुत बधाई मैं चाहूंगा ऑडियंस में से, क्योंकि आप सभी ने शिव को पढ़ा है, शिव पुराण को, और प्रशांत जी ने उसको साइंटिफिक तरीके से निरूपित किया। मैं चाहूंगा एक दो सवाल आपके आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जी प्लीज माइक तक पहुंचा दे प्लीज। यस, हम 2-3 सवाल लेंगे और उसके बाद हम सम अप करेंगे।
नमस्कार सर। इस प्रेम कथा को लिखते वक्त आपके जीवन में व्यक्तिगत रूप से क्या प्रभाव पड़ा और आपने अपनी अर्धांगिनी को किस प्रकार पुष्पित किया, ये मुझे जरूर बताएं। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। अभी अर्धांगिनी सामने बैठी हैं तो शब्द बहुत नियंत्रित रखने होंगे, आप समझ गए हैं। लेकिन फिर भी मैं एक जरूर कहना चाहूंगा, जो इसकी मुख्य पात्र हैं, शिवी हैं, शक्ति हैं, उनके स्वभाव का, उनकी बातों का, या वो किस तरीके से किस बात को प्रस्तुत करेंगे, ये लिखते समय हमेशा मेरी अर्धांगिनी मेरे हृदय में रही और मैं हमेशा उनसे प्रेरणा लेता रहा कि ये कैसा होगा। और निश्चित ही जब आप पुस्तक लिखते हैं तो आप सारे पात्र को जीवंत अपने अंदर करते हैं। आप रुद्र भी आप ही हैं, शिवी भी आप ही हैं, शक्ति भी आप हैं, तो उनकी भावनाएं आपको जरूर प्रभावित करती हैं। बिल्कुल। कोई और सवाल इधर से? बहुत सारे मीडिया के विद्यार्थी हैं, साहित्य के विद्यार्थी। जी प्लीज। नमस्ते प्रशांत जी। आप अपना परिचय भी दीजिएगा। मेरा नाम ईना है, मैं करियर काउंसलर हूँ बाय प्रोफेशन और गवर्नमेंट ट्रेनर हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि आदि देव जितना मैं समझती हूँ या शिव जितना मैं समझ पाई हूँ, वो फ्रीडम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो कैसे हम इस सोसाइटी में रहते रहते उस फ्रीडम को अपने अंदर इंड्योर करें और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें? थैंक यू मैम। प्रश्न बहुत गूढ़ है और शायद मैं प्रयास करूंगा उत्तर देने का। जहां तक शिव की और फ्रीडम को अगर हम जोड़ने की बात करें तो निश्चित ही शिव ने हर स्वरूप में हमें फ्रीडम सिखाई है, हमें हमेशा काम करने का नया तरीका सिखाया है। चाहे वो अपने धर्मपत्नी की में बात की जाए, कभी भी फ्रीडम में उनको बांधने की बात नहीं हुई। अगर हम एक्चुअल एग्जाम्पल भी चलें, जहां पे सती है, शक्ति है, जो अपने पिता के यहाँ प्रजापति के यहाँ जाना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने एक बार उनको रोकने का प्रयास जरूर किया कि शायद वहां हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब उनकी इच्छा थी तो उन्होंने कभी भी उन पर बंदिश नहीं लगाई कि आप वहां पर ना जाएं। ऐसे कई उदाहरण उनके जीवन में मिलते हैं। तो मुझे लगता है अगर हम शिव के जीवन को आत्मसात करें तो हमारे जीवन में वो सुधार आ सकते हैं जो हम सब कहीं ना कहीं चाहते हैं, किसी भी माध्यम से। प्रशांत जी, एक सवाल, क्योंकि मुझे ये 4-5 लोगों ने भेजा, चलते चलते शॉर्ट में, चूंकि हमने जितना शिव पुराण में पढ़ा है, केदारनाथ में शिव की विवाह स्थल को दिखाया है, लेकिन आपने मंतलई एक जगह है किताब में, मंतलई में विवाह को दिखाया है। क्योंकि हम जो सुनते आए हैं वो केदारनाथ है, ये मंतलई का क्या वाक्य है? और एक और लाइन उसी किताब में है कि जो संताश करके राक्षस था, जो माता पार्वती से विवाह करना चाहता था, और माता पार्वती तप कर रही थी शिव जी को पाने के लिए, तो शिव जी ने उसका वध किया था। और आपने किताब में जिक्र किया कि त्रिशूल से उसका वध किया था, त्रिशूल के 3 टुकड़े वहां गड़े हुए हैं। तो ये दोनों के बारे में बताइए, इसको कैसे फैक्चुअल हम करेंगे? कहाँ सुना, कहाँ पढ़ा? क्योंकि ये शिव पुराण में मैंने पढ़ी है, मैंने कहीं इसका जिक्र नहीं है, ये पहली बार मैंने इस किताब में पढ़ा, तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? जी, हालांकि पूरे आनंद के लिए तो आप पुस्तक पढ़े, मैं ये कहूंगा, फिर भी संक्षेप में बताना चाहूंगा कि ये शिव विषय ही ऐसा है कि जितनी भी लोक कथाएं मिलती हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे का विरोध नहीं करती, वो एक दूसरे की पूरक होती हैं। प्रसिद्ध स्थान के रूप में केदारनाथ के पास में शिव का विवाह स्थान है। एक स्थान है हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, मंतलई, जहां पे ऐसा माना जाता है कि पार्वती वहां पे पैदा हुई, बड़ी हुई। उसी के नीचे एक स्थान है सुध महादेव, जहां ऐसा कहते हैं कि वहां पार्वती ने शिव की तपस्या की और वहीं पे एक राक्षस था सुधांत, जिसका वध शिव जी ने किया। और आज भी वहां पे जिस त्रिशूल से शिव ने वध किया है, वो तीनों त्रिशूल के टुकड़े वहां पर अभी हैं, वहां पर उपस्थित हैं। तो मैंने, चूंकि केदारनाथ बहुत फेमस था, प्रसिद्ध था, तो मैंने उस स्थान को साक्ष्य मान के कहानी को आगे बढ़ाना उचित समझा सर। मुझे लगता है कि बातें बहुत सारे सवाल हैं। अभी आप किताब यहाँ से जब आप खत्म होगा इस सत्र, तो आप लेखक के मोबाइल नंबर, मेल आईडी भी ले सकते हैं। और मैं निवेदन करूंगा इस किताब को जरूर पढ़िए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरी नज़र में, मैं अभी भी इस शब्द को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट को। क्योंकि मेरी नज़र में जब तक यहाँ भोपाल के पास में सांची एक जगह है, कभी आप जाएंगे, एक सूखा गांव है, देयर इज सेक्स वर्किंग विलेज, एक कमाठीपुरा है, एक आपका सोना काची है। तो मैं उस दिन वुमेन एम्पावरमेंट को जस्टिफाई कर पाऊंगा इस वर्ड को, जिस दिन आप में से सारी बच्चियां 3 बजे आएंगी और आपकी माँ को टेंशन नहीं होगी। मेरी नजर में वो वुमेन एम्पावरमेंट होगा, क्योंकि मेरा मानना है गंदगी दिमाग में है, कपड़ों में नहीं है। तो मुझे लगता है जो शिव के बारे में, ये बहुत ही साइंटिफिक तरीके से एक रिसर्च की एक बुक है। मैं इसे रिसर्च रेफरेंस बोलता हूं। जैसे मैंने कहा, मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा था, मैंने केदारनाथ के बारे में जाना था। आप जरूर इस किताब को पढ़िए। और मैं पुनः प्रशांत जी, तहे दिल से आपको इस किताब लिखने के लिए शुक्रिया तो नहीं कहूंगा,
मैं कहूंगा कि आप निरंतर लिखते रहिए और चलते चलते आप आगे क्या सृजन कर रहे हैं, अगली कोई किताब, और इसके साथ ही हम इस सत्र को समाप्त करेंगे। आगे प्रयास तो यही है कि जहां पे कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है, जहां हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, उन जानकारियों को सामने लाऊं कथाओं के माध्यम से, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अपने इतिहास के विषय में जान सकें। और मैं भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, विशेष रूप से BLF का पूरी टीम का बहुत बहुत हृदय से आभार कि मुझे अवसर मिला अपनी बात कहने का, इस मंच को साझा करने का। बिल्कुल, इस बात के साथ ही मैं इसको कंपाइल करता हूं और एंकर जी को माइक देता हूं। एक बशीर बद्र साहब हैं, हमारे भोपाल के बड़े शायर हैं, उनका शेर बड़ा खूबसूरत है। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल, आदरणीय राघव चंद्रा सर, खांडेकर सर, सुलक्षणा मैम और पूरी टीम को, और प्रशांत जी को मुझे ये मौका देने के लिए थैंक यू सो मच। I was absolutely mesmerized by the talk, and I think so was our audience. We are really short on time today, so we couldn't conduct the session any longer. We have back-to-back sessions here at Rangdarshini Hall. The audience can converse with the authors later in the authors lounge. It was really a divine way to start our morning. We have just journeyed back to the very beginning of time, witnessing a love story that wasn't just a myth, but a foundation of our cultural consciousness. It was fascinating to see how ancient and the eternal can still resonate so deeply with us today. A heartfelt thank you to Mr. Prashant Dikshit for bringing his award-winning research and storytelling to this stage, and to Mr. Prince Gaba for guiding this conversation with such grace and engagement. You both truly set a spiritual tone for our day. To honor our guests, I would now like to invite Niharika Singh Ji, a member of the Society for Culture and Environment, to join us on stage to present the festive memento. This memento is a piece of art that has a legend of its own. This is the BLF 2026 memento. The legendary Padma Shri Durga Bai created this artwork specifically for BLF 2026. It features a little Golraiya, a story of devotion. A tiny little bird loved by Bangsu is transformed by the tribal god into a beautiful maiden, bringing joy to his family. A beautiful token of devotion for a session of ultimate story of devotion. Yeah, definitely. I would request sir and madam to please join us in. Brigadier Vinayak and ma'am. Audience, let's give them a huge round of applause. मैं एक और क्षमा मांगूंगा कैमरामैन से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं शिव पार्वती की, तो प्रशांत जी की धर्मपत्नी जी को और बेटे को मैं आमंत्रित करूंगा, क्योंकि आपके बगैर अधूरा है। जी आप दोनों भी आ जाइए प्लीज। आ जाओ। Thank you once again to our speakers, and thank you to this wonderful audience for your attention. If the audience want to converse with the authors further, they can meet them in the author